Hey, hi everyone. I welcome you all to Rodha, and we'll be solving a very good LRDA set here. Okay, and we are adding some really good LRDA sets like this to our LRDA playlist. So there's already LRDA existing playlist, with lot of good sets. It has got some real high quality sets which can increase your thinking level actually. Okay, so just go through those sets also. Now in this set, it's a bit of unconventional Venn diagram. Though I can solve this set, if you read this set once, I can solve this set by 4 parameter Venn diagram also. Okay, but we'll try to induce some new thinking here. Okay, so we'll try to like think in a new way, because if I think in normal conventional way, like normal 2 3 4 parameter, no, suddenly when I see any cat paper, okay, जब भी हम cat का paper देखेंगे like it was in cat 22, तो हमारा माइंड बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पाता सडनली. ओके, क्योंकि हम वही कन्वेंशनल तरीकों से चिपके रहते हैं हम. सो वी डू नॉट ओपन टू थिंक डिफरेंटली. ओके, so though I can solve this set by 4 parameter Venn diagram, I'll show you a different process, a different type of Venn diagram which you can use in this kind of sets. Okay, and then your brain, after like if you induce such new sets, if you solve with new varieties, with new techniques, okay, then in CAT you can expect that like in some unexpected set or in some different set your mind can think differently. अगर आप अपने माइंड को उस लेवल का नहीं बनाओगे कि वो कैट में कुछ नया सोचे, तो वो नहीं सोच पाएगा, है ना. तो उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है. माइंड हमारा क्या है कि इसको आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा. ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व करूँगा मैं, देखना बेस सेट को. It says that in a company outing of Audi, exactly 4 events, event 1 through event 4 were conducted for the employees of the company. The total number of employees in the company was 150 and each employee participated in at least one event, right? The following information is known about the number of employees who participated in each event. Now, the first point is for n equal to 1, 2, 3, 4, any employee who participated in event n participated in at most one of event n minus 1 and event n plus 1, provided the event exists but not in any other event. That basically means what? देखो, अगर फर्स्ट पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ पे देखूंगा इसका मीनिंग क्या है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पुट करूँगा, लेट्स से आई पुट n इक्वल टू, मैं पुट करूँगा 1, है ना. तो n इक्वल टू 1 मीन्स क्या चल रहा है कि इन इवेंट n, मतलब इन इवेंट 1, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इवेंट 1 का. इफ somebody has participated in event 1, then he or she can participate in at most one event, that is n minus 1 and n plus 1. तो अगर आपकी n की वैल्यू 1 है वहाँ पे, तो अगर किसी ने E1 में पार्टिसिपेट किया है, तो ये n minus 1 मतलब E0 एंड n plus 1 मतलब E2. तो ये E0 या E2 में से, E0 और E2 में से किसी एक में पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट. दैट मीन्स इफ समबडी हैज पार्टिसिपेटेड इन E1, देन ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन एट मोस्ट वन इवेंट आउट ऑफ E0 और E2. दैट इज n plus 1 एंड n minus 1, है ना. n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, दैट मीन्स n plus 1 विल बी 2. तो आप बोलोगे यहाँ पे n plus 1 is 2 एंड n minus 1 is 0. प्रोवाइडेड द इवेंट एग्जिस्ट. तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे 4 इवेंट्स है, 1 2 3 4, है ना, 4 इवेंट्स है यहाँ पे, इवेंट 1 2 4, राइट. दैट मीन्स E0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. दैट बेसिकली मीन्स व्हाट, इफ E0 डजंट एग्जिस्ट हियर, दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इफ समबडी इज पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट 1, ही और शी एट द मैक्स कैन पार्टिसिपेट इन इवेंट 2. ओके, और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते पार्टिसिपेट, राइट. फाइन. नाउ समझना यहाँ पे, इफ आई ट्राई टू पुट n इक्वल टू 2, अगर मैं यहाँ पे n को 2 पुट करने का ट्राई करूँ, तो आप बोलोगे एनी एम्प्लॉय हु पार्टिसिपेटेड इन इवेंट n मीन्स इवेंट 2 हियर, ठीक है, देन ही और शी कैन पार्टिसिपेट इन एट मोस्ट वन ऑफ द इवेंट n minus 1 एंड n plus 1. तो n to 2 है आपका, सो n plus 1 विल बी 3 एंड n minus 1 विल बी 1, है ना. सो 2 plus 1 is 3 and 2 minus 1 is 1. ये मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की है. That means if somebody is participating in event 2, he or she at the max can participate in event 3 और event 1, है ना. दोनों में से किसी एक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो 2 वाले कहाँ पे, 3 और 1 में कर सकते हैं. सिमिलरली इफ आई से कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, ठीक है, अगर मैं बोलूँ आपसे कि लेट्स से आई पुट हियर n इक्वल टू, मैं यहाँ पे n को 3 पुट करता हूँ. ओके, सो इफ आई पुट n इक्वल टू 3, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो if somebody is participating in event 3, then he or she at the max can participate in which event? Can participate in en plus 1, that is E4, और n minus 1, that is E2, है ना. तो E3 में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो E4 या E2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे.
एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे n को 4 पुट कर दूँ तो आप बोलोगे जो E4 में पार्टिसिपेट कर रहा है राइट वो n+1 मतलब या तो E5 या n-1 या तो E3 में पार्टिसिपेट कर पाएगा, है ना, दैट इज E5 और E3। आपको पता है कि बट प्रोवाइडेड दैट द इवेंट एग्जिस्ट, तो आपको पता है कि E5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, सो E5 डजंट एग्जिस्ट हियर राइट। तो आप बोलोगे देन E4 वाले जो बंदे हैं दैट कैन पार्टिसिपेट मैक्सिमम इन E3, दैट्स इट, मैक्सिमम इन E3। तो समझ नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप बना सकते हो 4 पैरामीटर वेन डायग्राम, बट ट्राई टू थिंक डिफरेंटली, थोड़ा माइंड को कुछ डिफरेंट सोचो, ठीक है, सोचने पे मजबूर करो ऐसा आप। सो जस्ट ट्राई टू थिंक डिफरेंटली। आप यहाँ पे क्या बोलोगे, इफ़ यू ट्राई टू थिंक डिफरेंटली आप बोलोगे जो यहाँ पे इवेंट 1 वाले थे तो इवेंट 1 वाले सिर्फ इवेंट 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं राइट। जो जिन्होंने इवेंट 1 में पार्टिसिपेट किया, द गाइज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 1 दे कैन मैक्सिमम पार्टिसिपेट इन इवेंट 2। तो आई कैन से दैट कि 1 का सर्कल, जो इवेंट 1 का वेन डायग्राम का सर्कल है वो सिर्फ 2 से इंटरसेक्ट कर सकता है। कहीं पे देखो E1 का सिर्फ E2 आ रहा है, E3 का E4 E2 आ रहा है, E4 का E3 आ रहा है, मतलब E1 का सिर्फ E2 आ रहा है। तो मैं क्या बनूंगा, कैन आई मेक अ वेन डायग्राम लाइक दिस हियर, तो कैन आई मेक अ वेन डायग्राम लाइक दिस, मैं बोलूँगा कि लेट्स से दिस इज अ सर्कल ऑफ E1, ये आपका E1 का सर्कल है ना, दिस इज फॉर इवेंट 1, दिस इज फॉर इवेंट 1 and event 1 का circle at the max can participate like these guys can participate in event 2 में, ये लोग क्या कर सकते हैं at the max participate कर सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 का जो इंटरसेक्शन है 3 और 4 से है ही नहीं, तो ऐसा बना सकते हैं वेन डायग्राम। ओके, इसके बाद आप क्या सोचोगे कि जो इवेंट 2 वाले जो दिख रहे हैं यहाँ पे, जो इवेंट 2 वाले लोग हैं, तो इवेंट 2 गाइज, द इवेंट 2 गाइज कैन पार्टिसिपेट इन इवेंट 3 और इवेंट 1, दैट्स इट। तो इवेंट 2 का जो सर्कल है वो सिर्फ 3 और 1 से इंटरसेक्ट कर सकता है ना। तो इवेंट 2 का सर्कल जो सिर्फ 3 और 1 से कर सकता है, तो ये इवेंट 2 का सर्कल है, सो इट कैन इंटरसेक्ट विद ओनली इवेंट 3 एंड इवेंट 1। इवेंट 1 तो ऑलरेडी हो गया, दैट मीन्स इवेंट 2 का सर्कल कैन इंटरसेक्ट ओनली विद इवेंट 3। तो हम क्या बनाएंगे, दिस इज फॉर इवेंट 3 हियर, ठीक है। नाउ इवेंट 3 के बारे में बात करेंगे तो लुक एट इवेंट 3। इफ आई लुक एट इवेंट 3 हियर, देन इवेंट 3 की सर्कल, इवेंट 3 वाले लोग सिर्फ इवेंट 4 या 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं राइट। तो आप क्या बोलोगे, इवेंट 3 के लोग सिर्फ इवेंट 4 या 2 में कर सकते हैं, तो आप इवेंट 3 के सर्कल कैसे बनाओगे यहाँ पे, तो इवेंट 3 के सर्कल बनाओगे, इवेंट 3 को सिर्फ कहाँ पे करोगे आप, यू विल ओनली पुट विथ इवेंट 4, कहाँ पे पुट करोगे, यू विल ओनली पुट विथ इवेंट 4 हियर, ओके। लेट्स ट्राई टू डू दैट, इवेंट 4, ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ इवेंट 4 से इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, ऐसा सोचना चाहिए राइट। हम नॉर्मल 4 पैरामीटर वेन डायग्राम बना सकते थे और हम E1 और E4 का इंटरसेक्शन 0 कर देते हैं, जैसे आपको पता है कि E1 और E4 इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, E1 E3 नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पे भी हम नॉर्मल 4 पैरामीटर वेन डायग्राम बना के भी हम बाकी जगह 0 0 पुट कर सकते थे, ठीक है। बट लेट्स ट्राई टू थिंक डिफरेंटली, हमारा माइंड है, ठीक है, हमें उसको ट्रेन करना है टू थिंक डिफरेंटली, टू इंक्रीज आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सच दैट एग्जाम में, जैसे कैट 22 में क्या हुआ था कि एक नया टाइप का वेन डायग्राम आया था, तो नॉट अ टिपिकल वेन डायग्राम राइट, तो वहाँ पे हमारा माइंड बिल्कुल प्रोसेस कर पाता वहाँ पे, ओके। चलो देखो इजी ही है राइट। अब देखो ना आगे देखते हैं, सो हमारा वी आर डन विद द फर्स्ट पॉइंट हियर, लेट्स मूव टू सेकंड पॉइंट राइट नाउ। इफ यू मूव टू सेकंड पॉइंट हियर, इट्स गिवन दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 1 इज 10 मोर देन, तो इसको ना कुछ वेरिएबल मान लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से आपका ये वेरिएबल A है, वेरिएबल B है, C है, D है, दिस पार्ट इज E, दिस पार्ट इज F एंड दिस पार्ट इज G राइट। तो आप बोलोगे B क्या है, तो B मीन्स इवेंट 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन, D क्या है, इवेंट 2 एंड इवेंट 3 का इंटरसेक्शन, F क्या है, इवेंट 3 एंड इवेंट 4 का इंटरसेक्शन, दैट्स इट, ओके। क्योंकि आपको पता है कि इवेंट 1 वाले सिर्फ इवेंट 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, अभी जस्ट देखा हमने। इवेंट 2 वाले सिर्फ 3 और 1 में कर सकते हैं, इवेंट 3 वाले सिर्फ 2 और 4 में कर सकते हैं राइट। अच्छा, नाउ सो सेकेंड, अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 1, तो इवेंट 1 में पार्टिसिपेट कितनों ने नहीं किया, A प्लस B, तो आप बोलोगे A प्लस B इज दैट इज इक्वल टू 10 मोर दैन दैट इन इवेंट 4। तो इवेंट 4 किसने किया, तो अब सॉरी हाँ ठीक है, इवेंट 4 किन्होंने किया, तो इवेंट 4 इज G प्लस F इज 10 मोर दैन द गाइज ऑफ इवेंट 4। तो इवेंट देखो ये इवेंट 4 की सर्कल है, कितने हो गए, G प्लस 4 हो गए, 10 मोर देन दैट इन इवेंट 4, ओके। विच इन टर्न, तो अब ना देखो ये किसके, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ लिखा है विच इन टर्न, तो ये विच क्या है ना, ये इवेंट 4 को रेफर कर रहा है राइट। अब यहाँ पे एंड हुआ स्टेटमेंट इवेंट 4 पे, विच इन टर्न, तो इवेंट 4 क्या है आपका, G प्लस F है, ठीक है। सो इवेंट 4 विच इन टर्न इज मतलब इक्वल टू 15 लेस देन दोज हु पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 2,
ठीक है। तो 15 लेस देन दोज हु पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 2। इवेंट 2 में कितने पार्टिसिपेट किया? बी प्लस सी प्लस डी। तो आप बोलोगे बी प्लस सी प्लस डी माइनस 15। दैट्स द कंप्लीट मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट 2 हियर, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट 2 का यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग है यहाँ पे, राइट। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते देखना है यहाँ पे। लेट्स मूव टू स्टेटमेंट 3 राइट नाउ। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन बोथ इवेंट 2 एंड इवेंट 3। इवेंट 2 एंड इवेंट 3 मीन्स डी के बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स डी, ओके, इज इक्वल टू सेम एज number of persons who participated in both event 1 and event 3। तो you know that event 1 and event 3 में कोई intersection नहीं है। So event 1 and event 3 are completely different circles, no intersection, that means this is 0, है ना। So number of people who participated in event 1 and event 3 is 0। हमने यहाँ भी देखा था कि event 1 वाले जो लोग हैं ना, हमने यहाँ देखा था कि जो event 1 वाले लोग हैं they are only participating with event 2, that's it। तो 3 के साथ है ही नहीं, 3 वाले सिर्फ 4 और 2 में। तो इवेंट 1 और इवेंट 3 का तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है, तो दैट मीन्स 0 हो गया, दिस वैल्यू इज 0। ओके, तो ये वैल्यू 0 हो गया आपका। सो डी इक्वल टू 0, विच इन टर्न तो इवेंट 3 के बारे में, मतलब ये बारे में बात हो रहा है, विच इन टर्न इवेंट 1 एंड इवेंट 3 विच इन टर्न is same as the number of persons who participated in both event 3 and event 4। इवेंट 3 एंड इवेंट 4 में f ने पार्टिसिपेट किया है, तो f भी आपका 0 हो गया। दैट मीन्स d एंड f is 0। So what I can put here, I can put f as 0, I can put d as 0, I can put f as 0। ओके, तो मैंने सबको 0 पुट कर दिया, राइट। तो मेरा इक्वेशन क्या बना यहाँ पे? सो माई इक्वेशन इज नाउ a प्लस डी इज इक्वल टू 10 प्लस जी, ओके, एंड देन g इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस 15। दिस इज माई इक्वेशन राइट नाउ। ये यस है, यहाँ पे हमने इसको ये डिड्यूस कर लिया, राइट। नाउ अब यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ पर्सन्स हु, ये आपका डन हो गया। थर्ड पॉइंट, फोर्थ में आ जाओ। एग्जैक्टली 25 पर्सन्स पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 3। सो इवेंट 3 दैट मीन्स d प्लस ई प्लस एफ। बट आपको पता है कि d, आपको यहाँ पे क्या पता है कि d भी 0 हो चुका है, d इज इक्वल टू 0 एंड f इक्वल टू 0। दैट मीन्स इवेंट 3 के सर्कल में क्या बचा है? इवेंट 3 के सर्कल में क्या बचा है? ओनली ई इज लेफ्ट राइट नाउ। तो मैं क्या बोलूँगा कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो नंबर ऑफ एग्जैक्टली 25 पर्सन्स पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 3, दैट मीन्स ई विल बी इक्वल टू 25, है ना। वाइल एग्जैक्टली 50 एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटेड इन मोर देन वन इवेंट। तो 50 एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटेड इन मोर देन वन इवेंट, राइट। तो अब देखो यहाँ पे मोर देन इवेंट वन इवेंट क्या है मेरे पास? सो मोर देन वन इवेंट इज बी प्लस डी प्लस एफ, है ना। लाइक B इज फॉर इवेंट 1 एंड 2, D इज फॉर इवेंट 2 एंड 3 एंड F इज फॉर इवेंट 3 एंड 4। बट आपको पता है कि इसमें D और F तो 0 हो चुके हैं, दैट मीन्स इसका सम 50 है, दैट मीन्स D एंड F आर 0, दैट मीन्स ओनली B इज इक्वल टू 50। तो B की वैल्यू 50 आ गई। आई गॉट B इक्वल टू 50, राइट। दिस मच आई गॉट हियर। ओके, नाउ अब देखो व्हाट आई कैन थिंक राइट नाउ कि अभी ना जो हमारे पास ये इनकी वैल्यूज आई हुई है, सो व्हाट आई कैन थिंक इज कि अब ना आपको पता है कि टोटल देयर आर 150 एम्प्लॉइज हियर, ओके। तो मुझे टोटल को 150 से इक्वेट करना होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, सबको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं और एक 150 से इक्वेट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो बोलोगे सिंगल वेरिएबल कैसे चेंज करेंगे? तो आपको पता है कि b की वैल्यू 50 हो चुकी है, पता है ना आपको। a तो ये a हो गया, राइट, लीव इट एज a। तो अब बोलोगे a प्लस 50 प्लस, अब ये c है ना। देखो c को चेंज कर सकते हैं क्या a में? तो अब देखोगे यहाँ पे ये c है, तो नाउ व्हाट आई नो इज कि b इक्वल टू 50 है ना, और यहाँ भी b इक्वल टू 50 है। तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा? आई कैन राइट हियर दैट g इज इक्वल टू, अगर देखोगे यहाँ पे तो अगर मैं इस 10 को इधर कर दूँ तो व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट हियर इज g इज इक्वल टू a प्लस 40 लिख सकता हूँ ना। आई कैन राइट g इज इक्वल टू a प्लस 40, और अगर मैं इस g को यहाँ पे पुट करूँगा तो g इज इक्वल टू a प्लस 40 यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू b इज 50 प्लस c माइनस 15। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? देखो c क्या मिलेगा? c विल बी इक्वल टू a प्लस 5 मिल जाएगा। तो व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन पुट दिस c हियर, ओके। तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे। सो a प्लस 50, हम पूरे वेन डायग्राम का सम कर रहे हैं, a प्लस 50 प्लस c की जगह आई कैन राइट a प्लस 5, तो c की जगह आई कैन राइट a प्लस 5 प्लस d तो 0 है, प्लस e 25, ठीक है, प्लस f तो 0 है, प्लस g क्या है आपका?
तो योर जी इज नाउ, व्हाट इज योर जी, तो बोलोगे जी इज ए प्लस, व्हाट इज जी, जी इज ए प्लस 40, तो जी इज ए प्लस 40। अब ये सम कितना है, 150 है ये पूरा सम, दिस होल इज गिवन एज 150 है, राइट। तो अब मुझे यहाँ से मिल जाएगा, देखो ए की वैल्यू आएगी, देखो ए कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए प्लस ए इज 3a, 50 25 75 80 एंड 120, तो आप बोलोगे 3a प्लस 120 इज 150। कैन आई राइट हियर, और आई शुड राइट इन द नेक्स्ट पेज, ज़्यादा बेटर होगा। ओके तो इससे देखो इसको सॉल्व करके लिखते हैं यहाँ पे 3a, आई कैन जस्ट राइट हियर, ओके 3a प्लस 120 इज इक्वल टू 150, तो मुझे यहाँ के a की वैल्यू 10 मिल गई। तो द मोमेंट आई गॉट a इक्वल टू 10, तो अब मैं पूरा आराम से अपना वेन डायग्राम फटाफट बना सकता हूँ ना, आई कैन क्विकली मेक माई वेन डायग्राम हियर। दिस वॉज फॉर इवेंट 1, दिस वॉज फॉर इवेंट 2, दिस वॉज फॉर इवेंट 3 एंड दिस वॉज फॉर इवेंट 4। यही 4 इवेंट है यहाँ पे। तो ये हमारे इवेंट क्या थे, इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 एंड इवेंट 4, है ना। व्हाट आई विल से हियर कि आपका यहाँ पे लुक एट दिस, आपका यहाँ पे a की वैल्यू 10 आ गई, तो यहीं पे a था, आप यहाँ पे a को 10 लिख लोगे, है ना। देखो आपने यहाँ पे a को 10, आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे a को 10 लिख लिया, दिस a इज 10 हियर, ओके। a 10 b 50, देखो c कितना हो जाएगा, तो c इज a प्लस 5, आपका a 10 आ चुका है, लिखोगे 10 प्लस 5 15, तो c विल बी 15, राइट, तो c 15 हो जाएगा, ओके। सो a इज नाउ 10, B is 50, C is 15, D is 0, E 25, F 0, G क्या हो जाएगा, G is A plus 40, A 10 आ चुका है, 10 plus 40 is 50, तो बोलोगे G 50 आ गया, है ना। ये मेरा वेन डायग्राम है। सो 10 50 15 0 25 0 50, लेट्स राइट दिस हियर, 10 50 15, ओके, then 0, then 25, then 0 and with the last one, so last one is 50, तो यहाँ 50 लिख लो, 50, दैट्स द वेन डायग्राम आई कैन मेक हियर। फाइनली मैं बना सकता हूँ यहाँ पे ये वेन डायग्राम, ओके। एंड नाउ वी कैन जस्ट टर्न टू द क्वेश्चन, राइट। नाउ देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ओके। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन हियर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटेड इन इवेंट 4 एंड एट मोस्ट वन अदर इवेंट, तो कितने एम्प्लॉय से उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, आई वॉन्ट इवेंट 4 एंड एट मोस्ट वन अदर इवेंट, दैट्स इट, ओके। तो आप देखोगे इवेंट 4 प्लस एट मोस्ट वन अदर इवेंट, मतलब कोई भी वन मोर इवेंट हियर, ओके। तो देखोगे इवेंट 4 में कितने लोग हो गए यहाँ पे, सो इफ आई लुक एट दिस डेटा हियर, देखो यहाँ पे इवेंट 4 में कितने लोग हो गए, तो देखोगे इवेंट 4 में यहाँ पे 50 लोग हो गए, एंड बिकॉज द एटमोस्ट वन अदर इवेंट E4 एंड E3 इज 0, तो आपका यहाँ पे क्या है, E4 और E3 आपका 0 है, दैट मीन्स एटमोस्ट वन अदर इवेंट E4 एंड E3 इज 0, तो हम क्या बोलेंगे 50 प्लस 0, 50 वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप बोलोगे कि 50 प्लस 0, ओके, 50 प्लस 0, 50 वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वैल्यू आपकी 0 हो गई है ना। सो एटमोस्ट वन अदर इवेंट इज 0। E4 के साथ कोई सिर्फ ओनली E4 एंड 50 लोग हैं, सो ओनली E4 एंड 50 लोग हैं, उनके साथ बाकी सारे क्या हैं, 0 हो गए, सो ऑल आर 0, ओके, करेक्ट। देख सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, इन विच इवेंट डिड द हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट, है ना। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो देखोगे यहाँ पे लुक एट इवेंट डायग्राम हियर, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेट किस इवेंट में हुआ, तो आपको देखोगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे इवेंट 1 में कितने लोग थे, तो इवेंट 1 में 10 लोग थे, सॉरी इवेंट 1 में कितने लोग थे, 60 लोग थे, राइट। तो 10 प्लस 50 इज 60। इवेंट 2 में कितने हो गए, 50 प्लस 15 प्लस 0, तो E2 65 हो गया, E3 कितना हो गया 25, और E4 कितना हो गया 50। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज किस इवेंट में थे, E2 में थे, सो E2 हैड दी हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब लिखोगे आपका आंसर यहाँ पे E2 हो गया, सो योर आंसर इज E2 हियर, ओके, E2, इसका आंसर इज E2, दैट इज 65 पीपल, ठीक है। ओके, सो लुक एट दिस क्वेश्चन 3 गाइस, इट सेज दैट among the employees who participated in exactly one event, how many employees participated in either event 2 or event 3, okay। तो देखना among the employees who participated in exactly one event, right, तो देखो exactly one event क्या है, then either event 2 or event 3। तो if I look at the event diagram here, देखो exactly one event कहाँ पे आया आपका, तो बोलोगे exactly one event is here, this 10 guys only event 1, this 15 guys only event 2, this 25 guys only event 3, and this 50 guys only event 4, right।
So out of these employees, how many employees participated in either event 2 or event 3? So that means either event 2 is 15 or event 3 is 25. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 15 plus 25, 40. That means answer for the third question will be 15 plus 25, 40. तो बोलोगे 15 plus 25, 40 is the answer for the third question here. ठीक है, easy. फोर्थ में आते हैं. How many employees participated in at least 2 events but did not participate in event 1? तो मुझे क्या देखना है? Event 1 के सर्कल के बाहर how many employees participated in at least 2 events? Okay. देखो, तो event 1 के सर्कल के बाहर how many employees participated in at least 2 event, right? तो इसको पहले रब कर देते हैं, है ना? Now look at this event 1 के सर्कल के बाहर. तो ये event 1 का सर्कल है. So outside this circle, how many employees participated in at least 2 events? देखो, तो outside this circle ये 15 है. So these 15 guys participated in only one event. These 25 guys participated in only one event, and these 50 guys also participated in only one event. मतलब इस event 1 के circle के बाहर none of the employees participated in at least 2 events. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0, है ना? इवेंट 1 में है दिस 50 गाइज हैव पार्टिसिपेटेड इन 2 इवेंट, बट हमें क्या देखना है? इवेंट 1 की सर्कल के बाहर देखना है. ओके, तो इवेंट 1 के सर्कल के बाहर व्हाट इज आंसर? आंसर इज 0. ओके, तो 0 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ये. तो आपका फोर्थ का आंसर क्या हो गया? 0. ओके, सो दैट्स इट गाइज. दैट्स एंड दिस ब्यूटीफुल सेट. काफ़ी अच्छा सेट था. वो पॉइंट क्रैक करना अच्छा था कि अगर वो पॉइंट खुद से आप क्रैक कर लेते तो ठीक है, कि जैसे n = 1 2 3 4 वाला पार्ट है, और ऐसे एक वेन डायग्राम सोचना अच्छा चीज़ है, राइट? आप इसको एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हो. जस्ट ट्राई फॉर्मिंग 4 सेट वेन डायग्राम ये, ठीक है? आप यहाँ पे इसको खुद से भी ट्राई करना और इसको एक 4 सेट वेन डायग्राम बना के भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? ट्राई करना खुद से, इससे भी हो जाएगा. ओके, यू विल गेट द सेम आंसर्स, देन यू कैन फील. ओके, आना चाहिए ना, एक क्वेश्चन का मल्टीपल मेथड्स आना चाहिए भाई, तभी तो माइंड ग्रो करेगा ना. तो आप बोलोगे जैसे इसको बना लिया 4 सेट वेन डायग्राम बना दिया हमने इसको, ठीक है? एंड देन फिर ट्राई करना, बोलना कि ठीक है ये हमारा इवेंट 1 है, दिस इज़ माई इवेंट 2, दिस इज़ माई इवेंट 3 एंड दिस इज़ माई इवेंट 4 ये. ओके, एंड नाउ यू कैन जस्ट ट्राई टू फिल द डेटा कि जहाँ तुम्हारा इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है. सो ट्राई टू फिल ऑल दैट डेटा हियर. ठीक, देखना आपका ये सारा आंसर मैच करेंगे, देन यू विल फील गुड वंस यू गेट इट. ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.